Hello, Namaskar दोस्तों. So today I have one particular article and I will translate this article from English to Hindi. But before that, I would like to read whole article, and after that I will explain each and every word and every sentence in a comprehensive manner. Then please watch till the end. Okay, so let's get it started. So यहाँ पे है महाशिवरात्रि फॉर मोक्षा. Everyone seeks hacks in order to render every task easier. However, the best shortcut to atone for one's misdeeds and attain moksha is to observe Vrat fast on Shivratri, while Somara Vrat, Tiruvadhirai Vrat, Uma Maheswara Vrat, Kedara Vrat, Kalyana Vrat, Sula Vrat, Risbha Vrat, and Mahashivratri Vrat are the fast recommended by Kanda Purana. Observance of Mahashivratri Vrat is considered to be supreme, said P. Swaminathan. Celebrated on celebrated on the Chaturdasi Tithi in the Tamil month of Masi, when it is the waning phase of the moon. Mahashivratri is best observed by undertaking a day-long fast, listening to discourses, visiting to Shiv temple with offering and attaining pujas done in 4 phases that day. Those who cannot afford expensive offerings can submit bale leaves. Anything given with reverence will please the Lord. The story of Angulan, a hunter, is a case in point. One day he failed to gather anything from his hunt. Unwilling to return home empty handed to his family, he decided to stay on after dark, hoping to trap some animal that come to drink water in the lake nearby. As evening turned to night, there was no sign of any animal or even a bird. Not wanting to fall asleep on the tree he was crouched upon, Angulan kept plucking keeps from the tree and dropping them. Occasionally, when he took a sip of water from his water skin, a few droplets fell below. At dawn, he came down the tree and, to his surprise, found that leaves he dropped had adorned a Shiva lingam on the tree trunk. The Lord himself appeared before the hunter, pleased with this night-long vigil and offering of well leaves. Shiva blessed the hunter and his family and offered moksha to the hunter. So this was the whole article. I have read it. Now I will translate each and every sentence. So the first sentence was everyone seeks hacks in order to render every task easier. So यहाँ पे अगर देखें ना, तो यहाँ पे हर एक का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है. एवरीवन मतलब हर कोई, यहाँ पे सीक्स खोजता है. हैक्स आसान तरीके, इन ऑर्डर टू मतलब ताकि या के लिए होता है. रेंडर मतलब होता है बनाना, एंड एवरी टास्क मतलब हर काम. तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको कौन सा टेंस दिखेगा, ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस दिखेगा. क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो वर्ब है, जो वर्ब का बेस फॉर्म है, वर्ब के फेस फॉर्म में जो है यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, यहाँ पे वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसमें यस या ईएस लगता है. ठीक है, तो इसमें क्या है, एवरीवन ये जो है इसको एज अ सिंगुलर यूज किया जाता है. तो एवरीवन सीक्स, यहाँ पे सीक है, सीक वर्ब होता है और इसके साथ क्या लगा है, यस लगा है. ठीक है, यहाँ पे हैक, हैक क्या है, हैक एक नाउन है. हैक क्या है, नाउन है. और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कई तरीके की बात हो रही है. हैक मतलब होता है क्या, तरीका या ट्रिक, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, ये हैक्स में यस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे कई तरीके की बात की जा रही है. और जब नाउन को हमको प्लूरल बनाना होता है तो नाउन में भी यहाँ पे यस लग जाता है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा. तो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, ये वर्ब है और ये नाउन है. ठीक है, इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए, रेंडर मतलब बनाने के लिए, एवरी टास्क इजियर. अब यहाँ पे जो है याद रखना, एवरी टास्क इजियर, यहाँ पे इजियर आया है, इजी नहीं आया. ठीक है, यहाँ पे देखो इजी होता है, फिर इजियर होता है, फिर इजीएस्ट होता है. तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है. क्यों यूज किया गया है, क्योंकि हम कोई भी काम जो है दूसरे से मतलब किसी ना किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, उससे हमको इजी बनाना है. ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जो है आपका क्या आएगा, ये जो है आपका एज अ एडजेक्टिव यूज होगा.
ठीक है, एज अ एडजेक्टिव यूज होगा और यहाँ पे ये क्या आएगा, ये ईजियर आएगा। तो ये चीज़ बताना चाहिए। ये कौन सा टेंस था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और यहाँ पे जो है कैसे यूज हुआ ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, हर कोई हर काम को आसान बनाने के लिए आसान तरीके खोजता है। वैसे जब आप हिंदी में जो है यहाँ पे ता है ती है तो भी यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इधर इधर ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये इसको बोल सकते हो क्या, इसको जो है आप पूरा बोल सकते हो प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है प्रीपोजिशनल फ्रेज, या एज अ एडजेक्टिव काम करता है या एडवर्ब काम करता है। तो यहाँ पे ये जो है हैक्स के बारे में बता रहा है कि आसान तरीका किसके लिए होता है, रेंडर एवरी टास्क इजियर। तो इतना जो है अगर आपको डिटेल में जाना जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हाउएवर नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट था वो क्या था, हाउएवर द बेस्ट शॉर्टकट टू अटोन फॉर वंस मिसडीड एंड अटेन मोक्षा इज टू ऑब्जर्व व्रत। ठीक है, यहाँ पे व्रत, व्रत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे फास्ट भी बोलते हैं। ऑन यहाँ पे शिवरात्रि है। ठीक है, शिवरात्रि। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अब हाउएवर मतलब होता है हालांकि, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा रास्ता, एंड एटोन मतलब होता है प्रायश्चित करना। ठीक है, एटोन मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रायश्चित करना, या इसको रिपेंट भी बोलते हैं, रिपेंट। ठीक है, रिपेंट मतलब यहाँ पे प्रायश्चित करना होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मिसडीड मतलब होता है पाप। ठीक है, इसको इसका सिनोनिम्स क्या होता है, सिन भी होता है। एंड अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, ऑब्जर्व मतलब होता है पालन करना, व्रत मतलब व्रत हो गया, इसी को फास्ट कहते हैं। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हालांकि अपने पापों को प्रायश्चित करने और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, शिवरात्रि का व्रत रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा, क्या है, द बेस्ट शॉर्टकट टू अटोन, मतलब हाउएवर हालांकि, द बेस्ट शॉर्टकट टू अटोन प्रायश्चित करना, फॉर वंस मिसडीड मतलब एक व्यक्ति के जो है बुरे कार्यों के लिए, एंड अटेन मोक्षा मोक्ष अटेन करने इज, यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे मेन जो है वर्ब यहाँ पे क्या है, इज है। ठीक है, टू ऑब्जर्व व्रत ऑन शिवरात्रि, तो ये चीज होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा देख रहे हो, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है आपका ये नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज किसका कार्य करता है, एज अ यहाँ पे सब्जेक्ट भी यूज होता है ये, और ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। तो यहाँ पे कैसा यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो ये पूरा पूरा नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो याद रखना, द बेस्ट शॉर्टकट टू अटोन फॉर वंस मिसडीड एंड अटेन मोक्षा इज टू ऑब्जर्व, ये जो है प्रेजेंट जो है सिंपल टेंस है। ठीक है, या इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट जो होता है, ये मतलब जैसे नॉर्मली यूज किया जाता है किसी चीज़ को जो है, जो सच्चाई होती है उसको दिखाने के लिए, या ऐसे जो नॉर्मली रियल बात होती है उसको करने के लिए। अगेन यहाँ पे होता है कि सेंटेंस यहाँ पे थर्ड क्या था, वाइल सोमवारा व्रत, थिरुलोरई व्रत एंड उमा महेश्वर व्रत, इसमें कई व्रत के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये मेन वर्ब क्या है, आर है। अब इसके पहले यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये देखो आपस में वर्ड जो है जुड़ते पूरे चले गए थे, तो ये पूरा का पूरा क्या था, यहाँ पे नाउन फ्रेज था। ठीक है, वाइल वाइल यहाँ पे पूरा पूरा नाउन फ्रेज था, और जो कि एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा था। आर द फास्ट, आर द फास्ट, फास्ट रिकमेंडेड बाय द कंडा पुराना। ठीक है, कंडा पुराना, तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फास्ट क्या है, ये जो है एज अ नाउन यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब होता है व्रत। अब यहाँ पे कई व्रत थे इसलिए यहाँ पे यस लग गया है। ठीक है, ये चीज याद रखना, यहाँ पे द जो है डिफिनिट आर्टिकल है, तो ये चीज पता होना चाहिए था। इसका हिंदी जो है क्या होगा, हालांकि सोमवार व्रत जो है ये सब व्रतों द्वारा, मतलब ये जो है उनके द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, ये चीज था इसका। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ऑब्जर्वेंस ऑफ द महाशिवरात्रि व्रत इज कंसीडर टू बी द सुप्रीम। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेंस मतलब होता है पालन करना, एंड कंसीडर मतलब होता है माना जाना, सुप्रीम मतलब क्या होता है, सर्वोच्च। ठीक है, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत सबसे जो है श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है। यहाँ पे जो है ये पूरा पूरा क्या है, ये आपका नाउन फ्रेज है यहाँ तक। ठीक है, और ये जो है इधर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अगेन is celebrated on चतुर्दशी तिथि इन द तमिल मंथ ऑफ मासी। तो यहाँ पे क्या था, अब सेलिब्रेटेड मतलब होता है मनाया जाता है, चतुर्दशी मतलब चतुर्दशी हो गया, तमिल मतलब तमिल महीना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि जो है सेलिब्रेटेड, यहाँ पे क्या, यह तमिल महीने की मासी की चतुर्दशी को क्या मनाया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेटेड ऑन द चतुर्दशी तिथि इन द तमिल मंथ ऑफ द मासी, तो ये चीज हो गया। अगेन यहाँ पे है, महाशिवरात्रि इज द बेस्ट ऑब्जर्व बाय द अंडरटेकिंग अ डे लॉन्ग फास्ट। यहाँ पे ऑब्जर्व मतलब होता है मनाया जाता है, अंडरटेकिंग मतलब होता है करना होता है, डे फास्ट लॉन्ग मतलब पूरे दिन का व्रत होता है। तो महाशिवरात्रि पूरे दिन का व्रत रखकर मनाई जाती है। ठीक है, तो देखा भी होगा आप लोगों ने, मनाया भी होगा, तो यहाँ पे ऐसे ही चीज होता है ये।
अगेन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे था, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव ऑफरिंग कैन सबमिट बेल लीव्स। सो यहाँ पे जो है क्या होता है, कैन ऑफर मतलब खर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑफरिंग मतलब होता है चढ़ावा, जैसे जो आप भगवान को चढ़ाते हो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफरिंग बोलते हैं। एंड बेल लीव्स मतलब होता है बेल पत्र होता है। तो यहाँ पे जो लोग महंगे चढ़ावे नहीं दे सकते वे बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोज हु कैन नॉट ऑफर एक्सपेंसिव ऑफरिंग कैन सबमिट बेल लीव्स। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे द स्टोरी ऑफ अंगुलन अ हंटर इज अ केस इन पॉइंट। अब हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी होता है। अब केस इन पॉइंट मतलब क्या होता है, उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे केस इन पॉइंट मतलब क्या होता है, उदाहरण, या इसके लिए हम एग्जाम्पल का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज होता है। अगेन यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंगुलर नाम के शिकारी की कहानी का इसका उदाहरण आता है। ही हेल्ड टू गैदर एनीथिंग फ्रॉम हिज हंट। यहाँ पे फेल्ड मतलब, यहाँ पे फेल्ड मतलब असफल हुआ, गैदर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हुआ शिकार करने में क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। हंट मतलब क्या होता है, शिकार करना, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे है, अगेन है, ही डिसाइडेड टू स्टे ऑन द आफ्टर डार्क। तो यहाँ पे क्या है, डिसाइड मतलब फैसला किया, आफ्टर डार्क मतलब रात में, उसने रात में रुकने का क्या किया, फैसला किया, ठीक है। स्टे मतलब क्या होता है, रुकना। तो ये चीज़ यहाँ पे बताना चाहिए, ही डिसाइडेड, उसने जो है निर्णय किया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए टेंस कौन सा होता है, तो ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, जिसमें जो है क्या होता है कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म आता है, ठीक है। पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये चीज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही केप्ट पल्किंग लिप्स एंड ड्रॉपिंग देम। तो यहाँ पे क्या है कि पल्किंग मतलब, यहाँ पे प्लक मतलब क्या होता है, तोड़ना। एंड ड्रॉप मतलब होता है गिराना। तो यहाँ पे जो है ही केप्ट पल्किंग मतलब लगातार कोई चीज अगर आप कर रहे हो तो उसको केप्ट, केप्ट केप्ट लुकिंग हो गया, देखता रहा, केप्ट लुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, केप्ट पल्किंग मतलब तोड़ता रहा, ठीक है। एंड ड्रॉपिंग देम तोड़कर और गिराता रहा, या वो पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। तो ये चीज, वो पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा, तो इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, ही केप्ट प्लकिंग लीव्स एंड ड्रॉपिंग देम, ठीक है। अब यहाँ पे लीव्स आया है क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये जो है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज, एज अ नाउन यूज हुआ है। और यहाँ पे जो है कई जो है पत्तों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे लीव्स आया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, फ्यू ड्रॉपलेट फिल डाउन। अब ड्रॉपलेट मतलब क्या होती है, बूंदे होती हैं, ठीक है। फ्यू मतलब कुछ, फिल डाउन मतलब होता है नीचे गिरना। तो पानी की कुछ बूंदे क्या नीचे गिर गई, ठीक है। ही फाउंड दैट द लीव्स हैज एडॉर्न अ शिवलिंगम। अब यहाँ पे एडॉर्न मतलब क्या होता है, सजाया, एडॉर्न मतलब होता है सजाया, लिंगम मतलब क्या, शिवलिंग होता है। उसने देखा, ही फाउंड, उसने देखा या उसने पाया कि पत्तों ने शिवलिंग को सजा दिया था, ठीक है। कि हैड एडॉर्न, ये कौन सा टेंस है यहाँ पे, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। यहाँ पे हैड के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहिए, हैड अ लिंगम। अगेन यहाँ पे है, नेक्स्ट आता था, शिवा ब्लेस्ड द हंटर एंड ऑफर्ड मोक्षा। तो ऑफर्ड मतलब यहाँ पे ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, तो ऑफर्ड मतलब दिया, ठीक है। मोक्षा, मोक्षा दिया, तो भगवान शिव ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और मोक्ष दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है पूरा का पूरा पैसेज का ये सार था। आई होप कि यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो वैकेब निकल गया है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, सीख मतलब खोजना है, हैक मतलब यहाँ पे तरीका होता है, एटोन मतलब क्या होता है, प्रायश्चित होता है। फिर यहाँ पे अटेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना होता है। ऑब्जर्व मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना। सुप्रीम मतलब क्या होता है, सर्वोच्च होता है। अफोर्ड मतलब होता है खर्च उठा पाना। एंड अब ऑफरिंग मतलब होता है चढ़ावा। हंटर मतलब होता है क्या, शिकारी होता है, ठीक है। एडॉन मतलब होता है सजाना। एंड ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। ये सब यहाँ पे वर्ड थे, इसका चाहो तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू।